یہ ہے اسلام آباد، پاکستان کا دارالخلافہ، خوبصورت ترین شہر۔ یہ شہر ہے بابوؤں کا، افسر شاہی کا اور بیوروکریٹس کا، اور کیوں نہ ہو، آخر یہاں پہ بیٹھ کے انہی بابو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے پالیسیاں بھی بنائی۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک عام آدمی کو چھت نصیب نہیں، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، یہاں وفاقی سیکرٹری صاحبان اور گریڈ 22 کے افسران نے بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ جو ان کو ایک نہیں بلکہ 2 پلاٹ اسلام آباد میں دیتی تھی، اور یہ پالیسی تھی انہی بابو لوگوں کی تجویز کردہ، جس کو منتخب نمائندوں نے منظور کیا۔ اس پالیسی کے تحت گریڈ 22 کے افسران، وفاقی سیکرٹری صاحبان جو ہیں، اپنی سروس کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد تک 2 پلاٹ لینے کے حقدار ہوں گے۔ اسلام آباد میں جس طریقے سے قومی اثاثوں اور زمین کی جو بندر بانٹ ہے، ہم بات کریں گے آج کے پروگرام اپنا اپنا گریبان میں اس بندر بانٹ کی، اور دکھائیں گے آپ کو چہرے ان بابو لوگوں کے، ان وفاقی سیکرٹری صاحبان کے جنہوں نے اپنی سروس کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد جیسے علاقے میں ایک نہیں 2 پلاٹ حاصل کیے، اور اگر ان کی کھلے عام نیلامی کی جاتی تو اربوں روپے حکومت کو ملتے۔ یہ عوام کا اثاثہ اونے پونے داموں سرکاری ملازمین کو جس طریقے سے دیا گیا گریڈ 22 کے افسران کو، وہ یقیناً قابل اعتراض ہے، اور عام لوگ ضرور ان چہروں اور ان ناموں میں دلچسپی رکھتے ہیں جنہوں نے عوام کے اس اثاثے کو اپنی جیبوں میں ڈالا۔ آئیے دکھاتے ہیں ان وفاقی سیکرٹری صاحبان کے نام اور چہرے جنہوں نے 2 پلاٹ حاصل کیے۔ 2 پلاٹ یہ بابو لوگ۔ جنرل مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں یوں تو بہت سوں کو نوازا گیا، مگر ایک نئی پالیسی نے افسر شاہی کے دل جیت لیے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت کے سیکرٹری داخلہ سید کمال شاہ کی قیادت میں گریڈ 22 کے افسروں کا ایک وفد وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملا اور مطالبہ کیا کہ انہیں پہلے سے حاصل 1 کنال کے پلاٹ کے علاوہ اسلام آباد میں 1 کنال کا اضافی پلاٹ بھی دیا جائے۔ شوکت عزیز نے فوری طور پر حامی بھر لی اور وزیر اعظم کے خصوصی امدادی پیکج کے نام پر گریڈ 22 کے تمام افسروں کو 1 کے بجائے وفاقی دارالحکومت میں 2 پلاٹوں کا حقدار قرار دیا، جن کی مارکیٹ میں قیمت شاید ان افسروں کی پینشن سے بھی دگنی تھی۔ سب سے بڑا قومی اثاثہ زمین ہوتا ہے، اور یہ جو زمین پلاٹوں کی صورت میں، یہ بندر بانٹ میں اس کو کہتا ہوں، اور اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کہتا ہوں۔ اس کو سبسیڈائز جو ہے وہ عوام کرتی ہے، کیونکہ اگر انہی پلاٹوں کو آکشن کیا جائے تو اگر 3 کروڑ روپے اس کی قیمت آنی ہے اور وہ عوام کے پیسے ہیں، تو ان مخصوص 4 یا 5 طبقوں کو یہی زمین جو ہے یہ 1/4 اس اصل قیمت کی بھی نہیں ملتی، لہذا یہ عوام کے اوپر بوجھ ہے۔ پاکستان کی بدقسمت عوام کے خوش قسمت افسران کی فہرست میں ایسے بڑے بڑے نام شامل ہیں جن کے کارنامے اور کردار کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ کمال شاہ اعلیٰ افسران کے لیے 2 پلاٹوں کی پالیسی کے خالق سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سیکٹر D12-2 اور G14-4 میں کروڑوں روپے مالیت کے 1 کنال کے 2 پلاٹ حاصل کیے۔ ذرائع کے مطابق سید کمال شاہ نے گریڈ 22 کے افسروں کے ایک وفد کی قیادت کی جو وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملا اور جس نے 2 پلاٹوں کا مطالبہ کیا، جسے شوکت عزیز نے منظور کر لیا۔ کمال شاہ نے جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے غیر آئینی فرمان پر عمل درآمد کی بھی نگرانی کی، جس میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو برطرف کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق سابق وفاقی سیکرٹری کابینہ اعجاز رحیم کو اسلام آباد کے D12-2 اور G14-3 میں 1 کنال کے 2 پلاٹ عطا کیے گئے۔ اعجاز رحیم سابق وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ کے ہم زلف ہیں، اور وہ نواز شریف کے آخری دور حکومت میں 2 سال تک معطل رہے اور انہیں جنرل مشرف کے دور میں بحال کیا گیا۔ قومی احتساب بیورو کے سابق سربراہ نوید احسن جو ملک میں احتساب کے کام پر مامور تھے، انہوں نے بھی گریڈ 22 کا افسر ہوتے ہوئے اسلام آباد کے D12-2 اور G14-3 سیکٹروں میں 1 کنال کے 2 پلاٹوں پر اپنا حق جتایا۔ واضح رہے کہ ان پلاٹوں کی سرکاری قیمت محض چند لاکھ روپے ادا کی گئی، جبکہ ایسے 2 پلاٹوں کی مارکیٹ ویلیو کروڑوں روپے بنتی ہے۔ 2 پلاٹ کے بابوں میں ایک اور نام سابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ محمد اسماعیل قریشی کا ہے، جو اس وقت پبلک پالیسی کے قومی اسکول میں سینئر سرکاری افسروں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ اسماعیل قریشی نے بھی اسلام آباد کے سیکٹر D12-2 اور G14-3 میں 1 کنال کے 2 پلاٹ لے رکھے ہیں، جو یقیناً ان کے زیر تربیت افسران کے لیے ایک قانونی اور اخلاقی سوال ہے۔ یہاں پہ جن بیوروکریٹس پہ، جن جرنیلوں پہ نیب کے کیس چلنے چاہیے، جو انتہائی پوری زندگی کرپٹ بھی رہے ہیں، ان کو بھی روٹین میں 2 پلاٹ مل رہے ہیں۔ دیکھیں، کرپشن کو ہم نے بنا لیا ہے کہ شاید صرف
जो अवामी नुमाइंदे हैं इन्हीं तक हमने महदूद कर आप इसको करप्शन कहते हैं? मैं इसको इस मुल्क में अगर आप इवैक्यूई प्रॉपर्टी से शुरू हो और आज का वो लें, इससे बड़ी कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि कौमी असासे अगर गैर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जाए और रूटीन में दिया जाए, करप्ट लोगों को भी दिया जाए, तो मैं उससे बड़ी करप्शन इसको ही समझता ही नहीं। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन और फन मौसीकी का ज़ौक रखने वाले अब्दुल्ला यूसुफ ने भी अपनी अवामी खिदमात की एवज भरपूर दाद वसूल की और D12-3 और I-84 के इंतहाई कीमती इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के एक किनाल के 2 प्लॉट वसूल किए। साजिद हुसैन चट्ठा जो पाक फौज से सिविल सर्विस में दाखिल हुए, उन्होंने भी बतौर विफाकी सेक्रेटरी D12-3 और G14-3 सेक्टरों में ऐसे ही 2 प्लॉट हासिल किए। साजिद चट्ठा चौधरी बरादरान के करीबी समझे जाते हैं। इसी तरह मोहसिन हफीज जो एक तवील अरसे तक जनरल मुशर्रफ के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे, उन्होंने भी D12-2 और G14-3 में ऐसे ही 2 कीमती प्लॉट हासिल किए और महज चंद लाख रुपए की रियायती कीमत अदा की। जमीनों की इस मुल्क में सबसे बड़ी करप्शन और करप्शन की बुनियाद जमीनों से पड़ी है, इन प्लॉटों से पड़ी है। ये अवाम के असासे हैं, ये अवाम की दौलत है। अगर किसी ने लेना है ऑक्शन करके लें, और मैं समझता हूं कि अवाम के जो हक हैं उनको उन तक ये उनकी फलाह के लिए पैसे खर्च होने चाहिए। 2 प्लाटी पॉलिसी का फायदा उठाने वालों में मोहम्मद हमायूं फरशोरी भी शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन भी रहे और बतौर कमीशन के रुकन वो सूबे में नौजवान सरकारी अफसरों के इंतखाबी अमल में पेश रहे। मोहम्मद शकील दुरानी मौजूदा चेयरमैन वापडा ने भी 2 प्लाटों की पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया और विफाकी दारुल हुकूमत के D12-3 और G13-4 में एक किनाल के 2 प्लॉट हासिल किए। शकील दुरानी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा रुकन सुहेल सफदर, जिनका ताल्लुक ऑडिट और अकाउंट से है और जो सरकारी इदारों में बेजाब्तगियों और बदउनवानी की छानबीन करते रहे, वो भी 2 प्लॉट वसूल करने में नहीं झिझके और चंद लाख रुपए अदा करके करोड़ों की सरकारी जमीन हासिल कर ली। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिन जर्नैलों ने इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म किया, आइन को मुअत्तल किया, आइन को पैरे तलो रौंदा, उनको सबसे ज्यादा प्लॉट और सबसे ज्यादा जमीनें वो ले चुके हैं और आज मजे से या उनकी औलादों के पास है या वो खुद बाहर मजे कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी दिफा कामरान ने भी अपने 2 प्लाटों का भरपूर दिफा किया और D12-2 और G13-4 में सरकारी जमीन को माले गनीमत जानकर कबूल करने में देर न की। कामरान इस वक्त निजी बैंक में मुशीर के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। मुश्ताक अहमद मलिक जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने भी D12-2 और G13-3 में एक किनाल के 2 प्लाट हासिल किए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा रुकन सैयद सफदर जावेद ने भी पब्लिक सर्विस में कोई कसर नहीं छोड़ी और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक किनाल के 2 प्लाटों पर अपना हक जताया। 2 प्लाटी अफसरान में एक अहम नाम GM सिकंदर का भी है, जिन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5 वज़राए आला को खिदमात पेश की और इस वक्त वो रिटायरमेंट के बाद डिप्टी वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही के मुआविन खुसूसी तैनात किए जा चुके हैं। GM सिकंदर भी बतौर ग्रेड 22 के साबिक अफसर इस्लामाबाद में एक किनाल के 2 प्लाटों के मालिक हैं। हर एक को अपनी अपनी मिसाल बनानी चाहिए, जहाँ पे हमें मिसाल बनाए उसी तरह जो जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब 8 से लेकर 12 बजे तक करप्शन के खिलाफ हम बात करते हैं और जायज़ करते हैं, तो उनको भी खुद मिसाल बना के और ये जो प्लॉट वो लेते हैं, देखें कोई भी हमें किसी ने कनपट्टी पे रख के बंदूक, मुझे ये नहीं कहा था कि वकील बन जाओ, मैं अपनी ख्वाहिश से बना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है, जर्नलिस्ट वो अपनी ख्वाहिश से बनता है। अगर कोई जज बनता है वो ख्वाहिश से बनता है, और अगर कोई जर्नैल बनता है वो भी ख्वाहिश से बनता है, या ब्यूरोक्रेट ख्वाहिश से। इनका कोई अवाम पे एहसान नहीं है और अवाम के कॉस्ट पे, उनकी कीमत पे, उनकी जमीनें और उनके असासे औने पौने दामों लेना, मैं समझता हूं मैं इसको करप्शन का नाम दूंगा और हम सबको अपनी अपनी मिसाल कायम करके इसको बंद करना चाहिए।
मुल्क के सरकारी इदारों के मालियाती अखराजात की निगरानी करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इफ्तिखार अहमद खान भी प्लाटों के घुन चक्कर से न बच सके। उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन के 2 प्लॉट महज चंद लाख रुपए की कीमत के एवज हासिल किए। रुखसाना जब्बार मेमन ने भी 2 प्लाटों पर खवातीन के हुकूक का भरपूर दिफा किया और बतौर ऑडिटर जनरल D12-4 और G14-3 में 2 प्लॉट हासिल किए। मारूफ पुलिस ऑफिसर शुएब सिड्डल जो अपनी उसूल पसंदी के बायस जाने जाते हैं, उन्होंने भी मौका हाथ से न जाने दिया और D12-4 और I-84 में मिलने वाले एक कनाल के 2 प्लॉट कबूल कर लिए। साबिक IG पुलिस शुएब सिड्डल इस वक्त विफाकी टैक्स मोहतसिब के ओहदे पर फाइज हैं। 2 प्लाटिये बाबू में एक और अहम नाम सलमान फारूकी का भी है, जो सदर जरदारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सलमान फारूकी ने अपनी अवामी खिदमात के एवज D12-2 और I-83 में 2 प्लॉट हासिल किए। सलमान फारूकी सदर जरदारी के मोतमदे खास है और माजी में उन्होंने बदउनवानी के मुकदमात का भी सामना किया। मौजूदा सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी चाहे खारजा पॉलिसी पर फौरी अमल करते हो या नहीं, लेकिन 2 प्लॉटों की पॉलिसी पर अमल दरामद में उन्होंने पल भर देर न की। जलील अब्बास जिलानी ने D12-4 और I-83 में एक कनाल के 2 प्लॉटों को गैर मुल्की दौरे की दावत समझकर कबूल कर लिया। 2 प्लाटिये बाबू में जो दूसरे मारूफ ग्रेड 22 के अफसरान शामिल हैं, इनमें साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खालिद सईद, साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अब्दुल रऊफ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी अकलीती उमूर मोहम्मद जमील, साबिक सेक्रेटरी इंसदादे मंशियात डिवीजन इस्माइल हसन न्याजी, साबिक सेक्रेटरी मजहबी उमूर वकील अहमद खान, साबिक सेक्रेटरी वजारत तालीम साजिद हसन, सेक्रेटरी टैक्स मोहतसिब सैयद मोहसिन असद, साबिक सेक्रेटरी वजारत तालीम जहांगीर बशीर, साबिक अफसर बकार खास एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शेख अलीम महमूद, साबिक MD एनरकोन डॉक्टर परवेज ताहिर, साबिक सफीर हसन सरमद, साबिक DG इदारा जुमला हुकूक यासीन ताहिर, साबिक सेक्रेटरी उमूर नौजवानान गियासुद्दीन अहमद, साबिक सेक्रेटरी निजकारी और सरमायाकारी डिवीजन मरहूम आरिफ मंसूर, साबिक सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन अहमद जवाद, साबिक सेक्रेटरी रेलवे गियासुद्दीन, साबिक सेक्रेटरी उमूर खेल मोहम्मद अशरफ खान, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के बदरुल इस्लाम, चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सैयद अनवार हैदर, साबिक सेक्रेटरी माहौलियात राजा रजा अरशद, साबिक सेक्रेटरी SM जुनेद, साबिक IG मोटरवे रिफत पाशा, साबिक सेक्रेटरी सबतैन फजल हलीम, साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC अब्दुल मोइज बुखारी, साबिक डायरेक्टर जनरल डाखाना जात अहमद मियां, साबिक मुशीर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब्दुल वदूद खान, साबिक सफीर शहबाज, साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अली आफरीदी, साबिक सेक्रेटरी ज़कात ओशर खालिद इदरीस, साबिक सेक्रेटरी विफाकी मोहतसिब जावेद इकबाल चौधरी, साबिक कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी सैयद शबीर अहमद, साबिक सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल GA साबरी। इन तमाम ग्रेड 22 के अफसरान ने भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में भी एक कनाल के 2 कीमती प्लॉट अपना हक समझकर वसूल किए। जराये के मुताबिक तमाम वजारतों में मौजूदा सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के दूसरे आला अफसरान भी ऐसे ही 2-2 प्लॉट हासिल कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ रिवायती एक प्लॉट वाले ग्रेड 22 के बाबू साहिबान की तादाद सैकड़ों में है। इशफाक अहमद गोंदल साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जो पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के राजदार समझे जाते हैं, उन्होंने भी D12-3 और G14-3 में 2 कीमती प्लॉट बखुशी कबूल किए। 2 प्लाट हासिल करने वाले वफाकी सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के आला अफसरान के मौक़िफ़ को भी हमने जानने की कोशिश की और इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इशफाक गोंदल, जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात हैं और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी रहे हैं। 34 साल उन्होंने वफाकी हुकूमत में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इशफाक गोंदल साहब, अब ये जो सवाल आ रहा है कि ये जो 2 प्लाट वफाकी सेक्रेटरी साहिबान ने हासिल किए हैं, तासुर ये है और तवक्को ये की जाती है कि वफाकी सेक्रेटरी साहिबान अवाम के मुफाद में पॉलिसियाँ बनाएंगे, मगर अब ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद वो अपने मुफाद में पॉलिसियाँ बनाते हैं, जैसे कि ये 2 प्लॉट वाली पॉलिसी सामने आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये तासुर जो है, ये बुनियादी तौर पे पहली बात तो यह है कि गलत तासुर है कि 2 प्लाट्स की जो बात आपने की है कि 2 प्लाट्स लिए हर सेक्रेटरीज ने। बात यह है कि एक प्लाट जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन जो थी, हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो प्लाट वो जो है वो उसको दिया जाता है। उसमें एक प्रोसेस में ये होता है कि प्लाट्स कम है, कुछ बंदे रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको प्लाट मिल जाता है। आजकल, पहले तो ये था कि ड्यूरिंग द सर्विस ही उनको बहुत प्लाट मिल जाया करता था, लेकिन अब थोड़ी मसला बन गया है, अब प्लाट्स जो है वो उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिल जाता है, लेकिन एक प्लाट नॉर्मली हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है और वो एक स्टैंडर्ड जो उनका जो रेट है उसके मुताबिक उनको दिया जाता है। अब फेडरल सेक्रेटरीज को प्लाट एक देने का जो आपने कहा कि जी 2 प्लाट दिए गए, 2 नहीं दिए गए, 1 प्लाट जो था वो फैसला हुआ था, अपने ख्याल में 2006 की बात है,
शौकत अजीज साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उसका बुनियादी मकसद भी ये था कि एक फेडरल सेक्रेटरी के लेवल पे एक बंदा जब वो सर्विस करता है, काम कर रहा होता है, एक अरसे तक वो फेडरल सेक्रेटरी का काम करता है, हाई प्रोफाइल्स जॉब करता है, और एकदम वो एक ही रात में वो बंदा एक ऑब्लिवियन में चला जाता है कि रिटायर हो गया, बस फारिग हो गया। अब उसको एक जो सबसे बड़ा उसको खदशा रहता है या सबसे बड़ा उसको खौफ रहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है। अमूमन अब G14 में मसलन कुछ लोगों को प्लाट मिले, मुझे भी प्लाट मिला G14 में एज सिविल सर्वेंट। उससे पहले आपको बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट और वही जो G14 में एक मिला था जो एज सिविल सर्वेंट, फिर दूसरा वजीर आजम के असिस्टेंट, दूसरा जो वजीर आजम पैकेज में मुझे सेक्रेटरी। तो कौन सा सवाल यही पैदा होता है कि आप जब सेक्रेटरी बनते हैं तो आपकी तनख्वाह और आपकी मुराद तो उसके मुताबिक होती है। अमेरिका का सदर भी जब ओहदा छोड़ता है तो कहता है मैं घर में बर्तन मांजूंगा, तो मतलब उसमें कोई हर्ज है क्या? उसमें खौफ क्या होता है कि अगर आप रिटायर होगे तो क्या हो जाएगा? खौफ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि चलो भाई मेरे पास एक सर छुपाने की जगह हो। तो वो तो एक प्लॉट जो आपको दिया जाता है तो उसका आपको पेंशन भी मिलती है, तो उस पेंशन से घर नहीं बन सकता? जी वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली जो अब प्लॉट्स में G14 में मिले, G14 में जब प्लॉट मिले लोगों को, G14 में अभी तक जो है घर नहीं बनना शुरू हुए, बहुत कम घर बनना शुरू हुए। अब उसका जो है इसी तरह से मसलन और जो नए सेक्टर आ रहे हैं उनमें घर भी नहीं बन रहे। तो घर बनाना जो है ये एक मसला है। एक सेटिस्फेक्शन होती है बंदे को कि यार मैं अब रिटायर हो गया हूँ, मेरे बच्चे मतलब अपने अपने काम पे लग गए हैं या कुछ अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो सर ग्रेड 22 के अफसर को तो सेटिस्फेक्शन हो गई, 2 प्लॉट ले लिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, ये ज़मीन तो कौमी असासा है ना। आप अगर चंद लाख रुपए में ज़मीन लेके कई ब्यूरोक्रेट्स ने 2 प्लॉट लिए 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है आम लोगों के साथ जिनका हक है इस पाकिस्तान की जमीन के ऊपर? बिल्कुल सबका हक है जी, बिल्कुल। तो क्या ये आम शहरियों के साथ ज्यादती नहीं है? ये बिल्कुल ज्यादती नहीं है, आम शहरियों के साथ भी ज्यादती नहीं है। एक्चुअली देखे ना CDA या मतलब दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, हाउसिंग फाउंडेशंस हैं, वो प्लाट्स जो है नई स्कीमें लाती हैं, वो कुरानंदाजी होती है, निकलती हैं। हर शहरी को प्लाट्स जो है, अक्सर लोगों को वो हजारों प्लाट्स, लेकिन इस्लामाबाद में और वो भी एक तासर तो ये है कि चौपड़ी और 2-2 मतलब इस्लामाबाद में ही 2 प्लॉट, ये भी ऐसी बात नहीं। वैसे तो एक पे भी एतराज है कि जो आप लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी आपको तनख्वाह दी जाती है, फिर प्लॉट क्यों लिया जाए हुकूमत से? तो मतलब इस हवाले से सेक्रेटरी साहबान की तरफ से जिस तरह समरी बनाई गई, क्या अवामी मफाद के लिए भी कोई ऐसी समरियाँ कभी बनाई जाती हैं इस सतह पे? बिल्कुल बनाई जाती हैं जी। ये मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो था ये भी एक अवामी मफाद में था कि एक बंदा जो है जिसको जो कि उस कौमी इंटरेस्ट में काम कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, अगर आप उसको एक 2 प्लॉट दे दें तो वरी से आज़ाद कर सकते हैं, आप उसकी परेशानियों से आज़ाद कर सकते हैं। सर तो जो तनख्वाह है वो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो काफ़ी नहीं होती? तनख्वाह जो आपको मिलती है सरकार के खजाने से जो हर माह, फिर पेंशन मिलती है आपको, वो भी करोड़ों रुपए में चली जाती है कई सेक्रेटरी साहबान की। नहीं, करोड़ों में तो कितनी होती है पेंशन? पेंशन करोड़ों में नहीं होती है। कहाँ तक जाती है? ऐसी नहीं होती। तनख्वाह कितनी होती है आम आदमी के लिए बताएंगे? देखिए बात यह है कि अब तो तनख्वाहें बढ़ गई हैं। अब आज से 4 साल पहले तो फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह जो थी वो तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती। अब कितनी है? अब मेरे ख्याल में ज्यादा होगी, मुझे नहीं पता। लाख से ऊपर होगी? मुझे लाख से ज्यादा होगी। और पेंशन कितनी होगी? लाख से ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ आपको, प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे काम करते हैं, आपने कभी उनका सोचा है कि वो कितनी तनख्वाहें देती हैं, वो कितना पैकेज लेती हैं, और कितना एक फेडरल सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है, या सुबह से लेके 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 24 आवर्स। ये तो आप अपनी मर्जी से आपने नौकरी की ना, कोई जबरी मजदूरी तो नहीं कर रहा?
This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट ही। जबरी कोई नहीं कर रहा होता, उसकी अपनी ज़रूरत भी होती है, उसका अपना टैलेंट जो होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कौम को ज़रूरत होती है, जो लोग वो काम कर रहा होता है, उसकी अपनी माशी ज़रूरियात। सर, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो खसारे में जा रही है और इधर अरबों रुपए मालियत की ज़मीन औने पौने दामों पे, स्कीम के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे सरकारी अफसरों में अगर ऐसे तकसीम की जाएगी तो फिर आम शहरियों का क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा? देखिए, बात यह है कि ये सरकारी अफसरों को प्लाट देने से सीढ़ी खसारे में नहीं जा रही है। सीढ़ी अगर खसारे में जा रही है उसकी और वजूहात होंगी। वो क्या हो, मसलन वजूहात मुझे नहीं पता अब क्या वजूहात होंगी। इनएफिशिएंसी और व्हाट एवर यू कॉल इट, इनएफिशिएंसी कह लें, करप्शन कह लें, जो मर्जी कह लें आप इसको, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरा शिकायत ये भी है कि जो हुकूमती इदारे हैं, जो वजारतें हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी तो इनएफिशिएंट हैं, बावजूद इसके उनको इतनी ज्यादा मुराद, मतलब क्या परफॉर्मेंस के ऊपर कभी कारकर्दगी पे अवाम ने खुशी का इजहार नहीं किया। वजारतों के जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, इसके बावजूद ग्रेड 22 के अफसरों और सेक्रेटरी साहिबान को 2-2 प्लाट देना और फिर उन तमाम मुराद के अलावा जो उनको नौकरी के दौरान मिलती हैं, मेरे ख्याल में तो ये क्या एक बहुत अच्छी कारकर्दगी का इनाम होता है या ये क्या होता है? देखिए, कारकर्दगी का इनाम तो समझ लें ये होता ही है। अच्छी कारकर्दगी है या नहीं है, मुझे इससे अब मैं इस पे आप और प्रोग्राम करें तो इस पे हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि वेदर द पब्लिक सेक्टर इज परफॉर्मिंग बेटर और द प्राइवेट सेक्टर इज परफॉर्मिंग बेटर, सो वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। ये तो चले पॉलिसी की बात होगी। इट्स माय belief that public sector has always been more efficient than the private sector. इस मुल्क में जितनी परफॉर्मेंस या जितनी बेहतरी हुई है या लाई गई है वो पब्लिक सेक्टर ने लाई है और पब्लिक सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया है और पब्लिक सेक्टर में लोग बेहतर काम। अच्छा, बतौर सेक्रेटरी और ग्रेड 22 के एक साबिक ऑफिसर आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान जब सिविल सर्विस में होता है तो उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, अपने मसाइल भी होते हैं, बिकॉज ही इज़ बाउंड टू वर्क अंडर सम रूल्स ऑफ बिजनेस। और ये कहना कि मैं अपनी मर्जी से हर काम कर सकता हूँ, इट्स नॉट ट्रू। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने इनकार किया कोई भी प्लॉट लेने से, तो क्या ये एक मिसाल नहीं है आला अफसरों के लिए? और क्या कायदे आज़म ने जो पैगाम दिया था सरकारी अफसरों को कि इंटेग्रिटी और ऑनर के साथ जो है वो काम करें, तो क्या ये 2 प्लॉट लेना किसी तौर पे भी गैर अखलाकी नहीं है या अनएथिकल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। और कायदे आज़म अगर होते वो भी प्लॉट ले लेते आपके ख्याल में? कायदे आज़म वाज नॉट अ सिविल सर्वेंट। नहीं, मतलब एक मिसाल, एक लीडर के तौर पे अगर कायदे आज़म होते तो वो भी इस्लामाबाद में 2 प्लॉट ले लेते, जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने पीछे दीवारों पे लगाई होती हैं। नहीं, ये इसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा और इसके बारे में गुफ्तगू जो है वो मज़ीद, ये चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई थिंक वी कैन हैव ए डिटेल्ड प्रोग्राम एंड इफ़ यू हैव टाइम आई कैन डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो अब बात कहाँ से शुरू हुई, आप बात कहाँ से? एक मिसाल है, कायदे आज़म की तस्वीर लगाई होती है तमाम सरकारी दफ्तरों में और उनके नीचे पैगाम लिखा होता है वर्क विद इंटेग्रिटी एंड ऑनर। मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या कायदे आज़म अगर आपकी जगह पे होते तो वो 2 प्लॉट ले लेते? अब मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर। सर, थैंक यू वेरी मच। इशफाक गोंदल, सीनियर ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 34 साल वफाकी हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दी, मगर वो दिफा कर रहे हैं इस पॉलिसी का कि वफाकी सेक्रेटरी साहिबान को जो दूसरा प्लॉट मिला, उनका ये कहना है कि एक तवील सर्विस के बाद जब इंसान रिटायर होता है तो उसकी परेशानियाँ होती हैं और दूसरी मजबूरियाँ होती हैं और वो उन परेशानियों से आज़ाद रहना चाहता है। और यही वजह थी कि शायद वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ 2006 में उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी साहिबान और ग्रेड 22 के अफसरान के लिए दूसरे प्लॉट की भी इजाज़त दे दी। इन प्लाटों के घन चक्कर से हमारा निज़ाम अदल भी महफूज नहीं रहा। इस्लामाबाद में ये है दामने को
शहर की खूबसूरत तरीन जगह जहाँ पे आला अदलिया के जजों के लिए सरकारी तौर पे रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। ये हैं वो एक एक कनाल के सरकारी घर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिले हैं। तकरीबन 8 लाख रुपए तक माहाना की तनख्वाह, जिसमें से टैक्स भी नहीं कटता। मगर अब सुनने में ये आ रहा है और दस्तावेजात से ये इंकशाफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी एक नहीं कई जजों ने 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। सब ने नहीं मगर बहुत से जजों ने 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। बहुत से जजेस रिटायर हो चुके हैं और बहुत से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले सादर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम मामलात में हुकूमत की करप्शन सामने आई और अदालतों ने उसके हवाले से फैसले भी दिए। खासकर कौमी असासों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत अहम फैसले दिए, जिसमें कहा गया कि कौमी असासों का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से और आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने एक प्लॉट वज़ीर आज़म के खसूसी असिस्टेंस पैकेज के ज़रिए लिया, जिसमें वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, कोई कानून भी नहीं होता। जबकि यहाँ बहुत सारे कवानीन और इवन आइन की शिकों को भी कालादम करार दिया गया और उनका भी जायज़ा लिया गया। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद में दिए गए ये प्लॉट जो 2-2 दिए गए जजों को, क्या वो कौमी असासा नहीं, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक भी नहीं 2 प्लॉट जो हैं वो लेने चाहिए सरकार से, और अगर वो लेते हैं तो क्या वो कौमी असासों के इस्तेमाल के हवाले से मुख्तलिफ फैसले देने की पोजीशन में होंगे। आइए देखते हैं उन जजों को, आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, तस्वीर दिखाएंगे और नाम बताएंगे जिन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वफाकी दारुल हुकूमत में 2-2 प्लॉट ले रखे हैं। पाकिस्तान भर के आला अदलिया के बहुत से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में 2-2 प्लाट ले रखे हैं, जबकि तकरीबन तमाम जजों ने एक-एक प्लाट सरकारी कीमत पर लिया है। ताहम एक जज साहिब ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी प्लाट लेने से इनकार कर दिया, और वो हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जवाद एस ख्वाजा वाहिद जज थे जिन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था, और मुशर्रफ दौर के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया गया। इसी तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज दूसरा प्लाट लेने से इनकार किया। ताहम बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट इनको दिए गए इस्लामाबाद में एक प्लाट के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों को तो खुद एक अपनी मिसाल कायम करनी चाहिए कि जब वो खुद फैसले लिखते हैं बड़े बड़े कि कौमी असासे किस तरह दिए जाए, मैं समझता हूँ उनको कतन ये नहीं लेने चाहिए। दोबारा वो चूंकि हुकूमत से लेते हैं और हुकूमती इदारों से लेते हैं, उन्हीं के केसेस उनके सामने आते हैं, और ये अगर आप देखें, और मैं इसको कंटेम्प्ट नहीं समझता हूँ, जिसमें इसको सेक्रेटरियों के प्लॉटों को लीगलाइज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नवाज अब्बासी साहब ने लिखी है। मैं उस जजमेंट को मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने अपने कॉज में एक जजमेंट दी है, अपने प्लॉटों को लीगलाइज किया है, मैं उसको गलत फैसला समझता हूँ। नवाज अब्बासी साहब के भी 2 प्लॉट, तो इसीलिए उन्होंने फिर फैसला भी दिया। 2 प्लाट हासिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज साहिबान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मियां शाकरुल्लाह जान ने इस्लामाबाद के सेक्टर D12-4 और G14-4 में एक कनाल के 2 प्लाट लिए, जिनकी सरकारी कीमत महज 32 लाख रुपए बनती है, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपयों में है। और मैं समझता हूँ उनको खुद अपने आप को मिसाल बना के ये प्लॉट इनकार करने चाहिए कि कोई जज भी आइंदा प्लॉट ना ले और हुकूमत से ना ले, और जो वो बाकी असूल कौमी असासों के लिए और उनको बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखते हैं, वही अपने ऊपर भी उसका अमल करें। हाँ, यकीनन अगर किसी को जगह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान या वकला जो है अपनी अपनी सोसाइटियां बना सकते हैं, लेकिन वो सोसाइटियां जो हैं वो अवाम की कीमत पे ना हो, सब्सिडाइज ना। इस्लामाबाद में सरकारी कीमत पर 2 प्लाट हासिल करने वाले एक और जज जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं, जिन्होंने G12-2 और G14-3 में एक कनाल के 2 प्लाट हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार डॉक्टर फकीर हुसैन ने भी
सरकारी कीमत पर करोड़ों रुपए मालियत के 2 प्लाट अपने नाम रजिस्टर करवाए। उन्होंने पहला प्लाट बतौर सेक्रेटरी लॉ कमीशन और दूसरा प्लाट वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज के मराती पैकेज में लिया। उन्होंने एक एक कनाल के 2 प्लाट इस्लामाबाद सेक्टर D12-4 और G14-4 में काबू किए। कानूनन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का रुतबा हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसमें अदलिया का क्या किरदार है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी बतौर वकील मौजूदा अदलिया से? मेरा तवक्को ये है कि वो इस पे भी सुओ मोटो लें, इस करप्शन को भी खत्म करें और आइंदा से तो अपने प्लाट तो वापस करने पड़ेंगे। जो हो चुका है वो हो चुका है। तो कौन से जज सुनेंगे ऐसे केस को जो इन्होंने दो प्लाट लिए हैं? बिल्कुल आइंदा के लिए रास्ते बंद कर लें। नहीं तो वो अपना प्लाट पहले वापस करेंगे, फिर इस केस को सुनेंगे। बेशक ना करें, बेशक ना करें, वापस ना करें, बेशक ना करें। आने वाले वक्तों के लिए अच्छा। ये रास्ते बंद कर, खुद अपने प्लाट पास रखें और आइंदा किसी जज को 2 प्लाट ना लेने दें। अगर कोई वापस करना चाहते हैं वापस कर ले, क्योंकि देखें वो फिर एक जज साहिबान नहीं है। बेतहाशा अगर आप 1947 से आज तक सिर्फ तखमीना लगा लें, जितनी जमीनें ऑक्शन किए बगैर इस तरह लोगों को दी गई हैं, अगर ये ऑक्शन हो जाती तो आज शायद पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 प्लाट लेने वाले रिटायर्ड जज साहिबान में मारूफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस जावेद इकबाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मतीउल्लाह जान मतीउल्लाह जान बात कर रहे हैं सर, वक्त न्यूज टेलीविजन के स्टूडियो से। क्या हाल है आपके सर? जस्टिस फलक शेख, जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान, गैर आईनी चीफ जस्टिस करार दिए जाने वाले जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने भी 2 प्लाट सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में ले रखे हैं। इनके अलावा जस्टिस रिटायर्ड सैयद सईद अशर, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद जावेद भुट्टर, जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर। आपसे एक सवाल करना है कि बहुत सारे जजों ने 2 प्लाट लिए हुए हैं, ये मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी गया है, तो आप इसको मुनासिब समझते हैं 2 प्लाट लेना सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए? मैं तो कोई इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर आपने भी तो लिए ना 2 प्लाट, सर कुछ तो बताए ना। नहीं सर कुछ तो बताए ना सर, आपको लोग सुन रहे हैं इस वक्त सर। बताऊंगा सर आपको लोग सुन रहे हैं सर आपको इस वक्त। नहीं सर, क्योंकि एज अ जज तो नहीं आप रहे ना सर, लोगों को कुछ तो बताए ना सर। नहीं सर, लेकिन 2 प्लॉट जो लिए उसके हवाले से कोई जस्टिफिकेशन सर आपका ज़मीर मुतमईन है वैसे सर? मैं नहीं बिल्कुल आपका ज़मीर मुतमईन है सर? मैं कोई कमेंट ही नहीं दूंगा बिल्कुल सर, क्योंकि आप तो काफी अर्सा सुप्रीम कोर्ट में रहे। जो मर्जी आप करें, मेरा कोई सर कमेंट नहीं देते तो सर कमेंट नहीं देते तो सर लोगों को प्लाट ही वापस दे दें जो कौमी असासा है, जो अवाम के पैसे कहते रहे आपकी तरफ से। हाँ जी, मेरी तरफ से इस मामले में कोई किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। अल्लाह जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नवाज अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अहमद भी सरकारी कीमत पर इस्लामाबाद में 2 प्लाट रखने वाले जजों में शामिल हैं। दूसरे जजों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन, जस्टिस सैयद जमशेद अली भी इस्लामाबाद में सरकारी कीमत पर एक कनाल के 2 प्लाट हासिल करने वालों में शामिल हैं। ताहम 2 प्लाट लेते वक्त मज़कूरा जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दे रहे थे। अच्छा मौलाना साहब, एक सेशन जज ने जुर्रत का मुजाहरा किया, बज़ाहिर हिम्मत दिखाई और चीफ जस्टिस के हुक्म पे एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा कि DHA और बहरिया टाउन और दूसरी जो हाउसिंग जो तामीराती कंपनियां हैं वो एक माफिया बन चुकी हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को इस्तेमाल करके जो है आम शहरियों को ब्लैकमेल करके उनकी जगहों को छीना है और उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम किया है। इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने सेशन जज की उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया। आप समझते हैं कि उस रिपोर्ट के ऊपर अगर चीफ जस्टिस मुनासिब हुक्म जारी करते तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, और ये रिपोर्ट तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं समझता हूँ जी कि उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। अगर नज़रअंदाज किया होता
تو جو ان کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس پھر نہ ہو. لیکن وہ رپورٹ پہ تو ایکشن لیا ہی نہیں چیف جسٹس نے. نہیں دیکھیں 2 سال پرانی ہے یہ رپورٹ تقریباً. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پینڈنگ کیس ہے اور اس پہ کیا چیف جسٹس کو اتنا انتظار کرنا چاہیے تھا اتنی خوفناک رپورٹ کے بعد؟ دیکھیں یقیناً اس رپورٹ پہ ایکشن چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ ایکشن ہوگا. سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے سے ہم نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے جج کو سرکاری نرخوں پر اسلام آباد میں 1 نہیں 2 پلاٹ لینا زیب دیتا ہے. اس پروگرام کے لیے آپ سے یہ مختصر سوال ہے سر کہ اس دفعہ بہت بڑا ایشو بنا ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں فہرستیں گئی ہیں کہ بڑے بڑے بیوروکریٹ اور ججوں نے 2 پلاٹ لے رکھے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ججوں کو یہ زیب دیتا ہے 2 پلاٹ لینا سرکاری قیمتوں پہ, انتہائی کم قیمتوں پہ اسلام آباد میں؟ یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. تو آپ بطور جج آپ نے جو 2 پلاٹ لیے ہیں آپ کے خیال میں وہ غلط کیا آپ نے یا صحیح کیا؟ یہ بھائی آپ فیصلہ کریں نا, آپ بیٹھے آپ فیصلہ کریں. نہیں تو آپ سر فیصلے سے پہلے آپ کو سننا بھی تو ضروری ہے نا سر, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. نہیں وہ جو واقعات آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. نہیں آپ سر بتائیں 2 پلاٹ آپ نے جو لیے ہیں اس کے بارے میں عوام کو کچھ بتانا نہیں چاہیں گے سر؟ ان کے علاوہ 1 پلاٹ لینے والے جج صاحبان کی فہرست بہت طویل ہے. تو جن ججوں نے 2 پلاٹ لیے ہیں آپ کے خیال میں یہ مس کنڈکٹ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اثاثے, اگر قومی اثاثہ بغیر آکشن کیے اور نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنی اصل قیمت سے کم کسی کو دیا جاتا ہے, ہاں جس طرح میں نے آپ کو کہا شہید ہو کوئی, مجھے کوئی اعتراض نہیں اور قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن اسی طرح روٹین میں دینا میرے نزدیک یہ کرپشن کے زمرے میں ہے. پلاٹوں کا کاروبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہر شخص, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی اس سرکاری زمین کو اسکیموں کی صورت میں ارزان نرخوں پہ خرید کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو بیچ رہا ہے, ارزان نرخوں پہ بیچ رہا ہے. یہ زمین کی نیلامی نہیں کی جا رہی جس سے اربوں روپیہ سرکاری خزانے میں آ سکتا تھا. پورا پاکستان یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ اس کو ایک پلاٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی شاید اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. آپ کسی شعبے کو لے لیں, چاہے دفاع ہے, چاہے حکومت ہے, کوئی سرکاری ادارے ہیں, ایون خفیہ ادارے ہیں, انہوں نے بھی اپنی اپنی اسکیمیں یہاں پہ بنا رکھی ہیں اور ان ہاؤسنگ اسکیموں کے اندر سرکاری ادارے اپنے سرکاری وسائل استعمال کر کے وہاں پہ تعمیرات اور وہاں پہ ان اسکیموں کو بنا رہے ہیں. یہ تمام صورتحال انتہائی سنگین ہے اور یقیناً قومی اثاثوں کے ناجائز استعمال کی ایک مثال ہے جس کا فوری طور پہ حکومت کو اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے سنا, ایک ماہر قانون, ایک وکیل نے مشورہ دیا کہ کسی کو مثال بنانی ہوگی, کسی کو اپنی مثال پیش کرنی ہوگی اور عدلیہ کے ججوں کو بھی اس میں پہل کرنی ہوگی تاکہ اس معاملے پر فوری طور پہ قابو پایا جا سکے. اس سے پہلے کہ پاکستان کا یہ سرزمین جو ہے اسی طریقے سے اسکیموں میں بٹ جائے. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اپنی رائے کے لیے ہمارا ای میل, فیس بک اور ٹویٹر ایڈریس نوٹ کریں. ہمیں بتائیں کہ جن جن شعبوں میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں ہم ان خرابیوں کی نشاندہی کریں. ہمارے دیے گئے ایڈریسز پہ اپنا انفارمیشن, معلومات اور دستاویزی ثبوت بھیجیے تاکہ ہم اپنے گریبان میں جھانک سکیں. اللہ حافظ.